ओके बेटा, हमारे कुछ चैप्टर कंटेंट्स हैं इन एसोसिएशन विद अवर टेस्टिंग। सो वहाँ से हम अपनी बात को शुरू कर रहे हैं। हमारा ओपनिंग टॉपिक है आज का एटीट्यूड्स एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। हमने जब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एटीट्यूड सर्वेज कंडक्ट करने हो तो उसके बारे में आपका ऑथर कहता है कि एटीट्यूड सर्वेज वुड इंक्लूड responses from employees through questionnaires about how they feel about their jobs, work groups, supervisors and the organization. अब ये सर्वेस करने हमारे लिए ज़रूरी इसलिए होते हैं ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन लेवल चेक कर सकें और ये चेक कर सकें कि जब हमने उनको हायर किया है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ KSAOs के साथ फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन सेट ऑफ TDRs, तो उस एसोसिएशन में क्या उनकी सेटिस्फेक्शन अचीव हो रही है या नहीं हो रही है। दैट इज द रीजन दैट वी नीड टू गो फॉर एटीट्यूड सर्वेज। सो दिस इज अ सैंपल एटीट्यूड सर्वे इन फ्रंट ऑफ यू। इसके ऊपर सबसे पहले देखिएगा कि प्लीज आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग फॉलोइंग रेटिंग स्केल। 1 would mean strongly disagree and 5 would mean strongly agree. Up, look at the statements that are being asked. The first statement that is being asked from the employees is, this company is a pretty good place to work, and the person has to rate in between 1 to 5. The second question is, I can get ahead in this company if I make the effort. This company's wage rates are competitive with those of other companies. Employee promotion decisions are handled fairly. I understand the various fringe benefits the company offers. And likewise, these questions would be continued, and the people would be giving their responses, and then we'll be collecting all those responses and evaluating those responses through the use of SPSS software to find out that how much the people are satisfied related to the jobs and the organization they are working in. Sometimes the people can become dissatisfied. There can be so many reasons of dissatisfaction, but they become dissatisfied. And once they become dissatisfied, one of the reasons could be that their TDRs are not in accordance with the KSAOs. Okay, so different responses would be generated as a result of their dissatisfaction. So that is being discussed in this particular scenario, that supposedly if the workers are less socially responsible, so their response would be more like having obstructionist approach. And if they have high social responsibility, their response would be more like proactive approach. Okay, in between these two, we have defensive approach and accommodative approach. Now, the responses of the employees could be constructive and destructive, and they can be by nature active or passive. Now, if the employees are having destructive connotation in their personality, yet they are active in their responses, so their outcome, the response of the job dissatisfaction outcome would be that they would like to exit. Okay, they would leave the company. They would not stay in the company for long. Now, supposedly, if they are having destructive responses and they are passive by nature, so their response would be neglect. Okay, they would try to neglect every possible situation in which they can become accountable or in which they are responsible even. On the other hand, if they are optimistic, if they are constructive by nature, if they are positivist people, so in that context, they would try to raise the voice if they are actively involved in social responsibility issues. इसके बरक्स अगर हम देखें कि अगर उनका जो कॉन्टेक्स्ट है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स के साथ वो हैं, एंड येट दे आर पैसिव, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उस सूरत में द रिस्पॉन्स दे कैन जनरेट वुड बी द लॉयल्टी. So these are the 4 responses to job dissatisfaction: voice, exit, neglect, and loyalty in relation with their destructive or constructive thoughts and active and passive personality.
Now, another important thing is that job satisfaction is directly related with customer satisfaction. Okay, it is said that satisfied employees increase customer satisfaction because they are more friendly, they are more upbeat and responsive. Secondly, they are less likely to turn over, which helps to build a long-term relationship with the customers, and they are experienced. Okay, so बहुत सारी रिसर्च इस पे कंडक्ट हुई हैं जिन्होंने इस बात को कंक्लूड किया है कि सेटिस्फाइड एम्प्लॉय ही एक सेटिस्फाइड कस्टमर के लिए बेस बनते हैं. ओके, सो डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स इंक्रीज एम्प्लॉय जॉब डिससेटिस्फैक्शन. और ये उसका अब रिवर्स प्रोसेस आ गया कि अगर एक कस्टमर ओरिएंटेशन के हवाले से अगर हम देखें तो अगर एक कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर है और उसके पास हर वक्त कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसका एंजाइटी लेवल जो है वो शूट अप कर सकता है, उसका बर्नआउट क्रिएट हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो सकती है. तो ये चीजें भी अब हमें देखनी पड़ेंगी कि ये एक रिवर्स प्रोसेस के तौर पर बैकफायर भी कर सकता है एम्प्लॉइज को. So as a conclusion of the research, I'm mentioning in the slide that dissatisfied customers increase employee job dissatisfaction. ठीक है, लेकिन अगेन अब हमें उनको ट्रेन करना पड़ेगा, हमें उनसे इमोशनल लेबर डिमांड करनी पड़ेगी, हमें उनको साइकोलॉजिकली ये बात की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इस बात की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि कस्टमर की कंप्लेंट्स को किस तरीके से उन्होंने पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिकली वो डील करना है. So that was the quotation which I liked the most in relation with the organizational relationship of customer and the employee. It says the greater danger for the most of us lies not in setting our aims too high and falling short, but in setting our aim too low and achieving our mark. Okay, so the tough times which we face in life are basically the times when we are more updating and updating ourselves, and that is the basically trial of our mental strength as well. Now another topic which is very important in our discussion context is emotions and moods. Okay, in an everyday routine, when you are dealing with the employees, when you are dealing with the customers, and even if you are looking in your own mirror image. So emotions and moods are something which are always with us. Okay, we might be bored, we might be enthusiastic, we might be happy, sad, confused, sulking, we might be angry. So there are so many things, so many emotions, so many feelings a person would be carrying all the time. Okay, but we have to technically look at these emotions and moods and see that how does employees are affected through these softer aspects. There are two sides of moods, positive and negative. And when we talk about the structure of mood in a diagrammatic format, so supposedly we start our discussion from high positive affect, right? उनकी feelings जो हैं वो positive connotation में हम अब use कर रहे हैं. So when the people would be having high positive affect, so उनकी जो demonstrations हैं, moods की demonstrations, वो होंगी in form of alert, would be in form of excited, would be in form of elated, would be in form of happiness. लेकिन जब हम हाई पॉजिटिव अफेक्ट से लो नेगेटिव अफेक्ट की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम कंटेंट. ठीक है, हम कोई सबर शुक्र की कैफियत में आएंगे एंड फ्रॉम कंटेंट टू विल बी मूविंग टुवर्ड्स सीरीन, रिलैक्स्ड एंड काम. ओके, सो सीरीन, रिलैक्स्ड एंड काम. अब हमारा जो ट्रेवल शुरू हो रहा है वो आपका लो नेगेटिव अफेक्ट की तरफ वो जा रहा है. इसके बाद अगर हम लो पॉजिटिव अफेक्ट की तरफ जाएं, so low positive effect में we will be having fatigued, bored, depressed and sad. Okay, तो ये हमारी एक्सटेंशन जो है अब वो नेगेटिविटी की तरफ डेवलप कर रही है और पॉजिटिविटी अब रिड्यूस कर रही है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट हाई नेगेटिव अफेक्ट, तो हाई नेगेटिव अफेक्ट में यू बिकम अपसेट, स्ट्रेस्ड, नर्वस एंड टेंस. ओके, सो लाइक अ क्लॉक,
याद रखिएगा कि ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन बीइंग इज गोइंग थ्रू दीज स्टेजेस। ओके, उसके एक दिन के अंदर भी हो सकता है कि इस मूड के डिफरेंट इन मूड्स के डिफरेंट जो शेड्स हैं वो उसकी पर्सनैलिटी में हमें नजर आ रहे हों। अब ये सारी जो डिस्कशंस हैं दे आर रिलेटेड विद, अगेन अगर हम मेंटल स्ट्रक्चर्स को भी देखें तो वी हैव गॉट supposedly two sides of the brain, the left brain and the right brain, and then we have two types of personalities, suppose extroverts and introverts. तो अब हम उसकी segregation को भी देखते हैं कि the extroverts who are basically known as doers and the introverts who are basically known as thinkers. अब ये जो thinkers और doers हैं, extroverts और introverts हैं, अब इनके भी कैटेगरीज क्या आ जाएंगी कि then they would be using their right side of the brain and they would be using their left side of the brain. ओके, और अब उस ब्रेन की जो न्यूरल नेटवर्क है, उस न्यूरल नेटवर्क के मुताबिक उनके जो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं, वो रिस्पॉन्सेज ऑब्वियसली उनकी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, और उससे हमें कई तरह के लोगों के जो रवैये हैं, कई तरह के उनके एटीट्यूड, कई तरह के उनके बिहेवियर्स वो हमें देखने को मिलते हैं। और जब हम साइकोलॉजिकल लेवल्स के ऊपर एम्प्लॉइज के साथ डील कर रहे हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रिक्रूटमेंट प्रोसेस and reaching up to the training and development and performance appraisal and all those HRM associated concerns, हम ये देखना होगा कि लोगों की जिंदगियों के अंदर जो उतार चढ़ाव हैं, उनकी पर्सनैलिटीज के उतार चढ़ाव हैं, उनकी सोच के अंदाज के जो उतार चढ़ाव हैं, उनके एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स में जो डेविएशंस हमें नजर आती हैं, वेरिएंसेस नजर आते हैं, दे आर ऑल नेचुरल एंड नॉर्मल, येट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देम एंड वी शुड बी एबल टू टैकल विद देम। अब इस हवाले से हमारे कुछ सोर्सेज ऑफ इमोशंस एंड मूड्स को देखना भी जरूरी होगा। अब इन सोर्सेज की इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले देखिए पर्सनैलिटी के इश्यूज हैं, पर्सनैलिटी टाइप्स हैं। अभी आपने जैसे अपना बिग 5 स्कोर कैलकुलेट किया, MBTI स्कोर कैलकुलेट किया, सो डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटीज डिफरेंट तरह की सिचुएशंस में डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेंगी, ठीक है। इसके अलावा भी पर्सनैलिटी के और भी बहुत से टेस्ट हम डिस्कस करते हैं, जैसे आपका लोकस ऑफ कंट्रोल है, मैकवेलियनिज्म है, टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटी है, सेल्फ एस्टीम का टेस्ट हो सकता है, शाइनेस का टेस्ट हो सकता है। इस तरह बहुत सारे हमारे पास साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि पर्सनैलिटीज की हमें आउटकम्स के बारे में बताते हैं, और हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी शख्स किसी भी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। इसी तरह डे एंड टाइम ऑफ द वीक, ये भी बड़ा इफेक्ट कर रहा होता है इमोशंस एंड मूड्स को, ठीक है। वीकेंड्स पर आपके इमोशंस एंड मूड्स डिफरेंट होंगे, वीक डेज में आपके इमोशंस एंड मूड्स डिफरेंट होंगे। इन द मॉर्निंग यू माइट बी फीलिंग डिफरेंट, इन द इवनिंग यू माइट बी फीलिंग डिफरेंट। सो डिफरेंट दिन के औकात और डिफरेंट हफ्ते के दिन, उसमें इंसान के मूड्स और उसके जो बिहेवियर्स हैं वो वेरी कर रहे होते हैं, ओके। इसी तरह मौसम के हवाले से भी डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन बहुत सी रिसर्च ने हमें यह बताया कि मौसम बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता आपकी पर्सनैलिटी और आपके मूड्स एंड कंसर्न्स को, अगर आप अदरवाइज ट्रिगर्ड ना हो, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेस लेवल, सोशल एक्टिविटी, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सरसाइज, एज, जेंडर, ये तमाम चीजें हमारे डिफरेंट तरह के सोर्सेज और मूड्स जो हैं उनको जनरेट करते हैं, उनको ट्रिगर करते हैं, उनका सोर्स बनते हैं। अब जब इसके ऊपर कई तरह की रिसर्च की गई तो पीपल केम टू नो दैट आवर मूड्स आर अफेक्टेड बाय द डे ऑफ द वीक, ठीक है। अब इस फर्स्ट चार्ट में देखिएगा विच इज इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर, यहां पर हम बात कर रहे हैं डेज की और मूड की। अब हमारे पास संडे टू सैटरडे का टाइम फ्रेम है और मूड को हमने सेग्रीगेट किया फ्रॉम लो टू हाई फ्लक्चुएशंस। हमारे पास ये जो नेगेटिव मूड के बारे में डिस्कशन है, ये आपका ब्लू लाइन से है, और ऑरेंज लाइन शो कर रही है पॉजिटिव मूड को। सो इट इज सेड दैट नेगेटिव मूड्स आर हाईएस्ट ऑन संडेज एंड मंडेज एंड फॉल थ्रू द वीक, ओके, बिकॉज वीकेंड, अब संडे को अब वीकेंड खत्म हो रहा है तो नेगेटिव मूड्स जो हैं वो आपके, दिस इज अगेन रिसर्च एविडेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकम हायर। और संडे को टुवर्ड्स द इवनिंग, टुवर्ड्स द डे एंड क्या होगा कि पॉजिटिव मूड्स आर हाईएस्ट एट द एंड ऑफ द वीक,
ओके संडे को ये लोएस्ट ग्राफ का हमारे पास लेवल आ रहा है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग द वीक आपके जो पॉजिटिव मूड्स हैं, बिकॉज सारा वीक आपका बिजी गुजरता है, सारा वीक आपका इन्वॉल्व गुजरता है, अपने कामों के अंदर मसरूफियत में गुजरता है, ठीक है, आप लोगों से मिलते हो, सो बहुत सारा जो ध्यान है वो इंसान का अदरवाइज बट भी रहा होता है। ओके और फिर इस बात की खुशी भी हो रही होती है टुवर्ड्स द व्हेन वी मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक कि जी अब हमें हॉलीडेज वो आ रही हैं, वीकेंड आ रहा है, सो दैट वुड ट्रिगर योर पॉजिटिव मूड। लेकिन बाय द टाइम व्हेन द वीकेंड इज एंडिंग तो दोबारा से वो मूड के अंदर फ्लक्चुएशन वो आ जाती है। सो यहाँ पर जैसे वो बता रहा है कि नेगेटिव मूड्स आर हाईएस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक एंड शो लिटिल वेरिएशन थ्रू आउट द डे. Positive moods are highest at the end of the week in the middle part of the day. So that is again the concern and the conclusion we have. जैसे आप नीचे वाले ग्राफ में देखिएगा in the lower right corner कि our moods are affected by the time of the day. So time of the day में supposedly in the morning negative moods are bit higher and the positive are, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम रोजमर्रा के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, सनलाइट में जाते हैं, ग्रीनरी को देखते हैं, लोगों को मिलते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके जो पॉजिटिव मूड है दैट गेट्स द ट्रिगर एंड द नेगेटिव मूड इट कम्स डाउन। ओके तो अब हमें बड़ा केयरफुल और बड़ा कैलकुलेटेड होकर सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा चीजों को कि किस तरीके से जो इंसानी सोच है, इंसानी मिजाज है वो बदलते हैं और किस तरीके से उनके दरमियान डिफरेंट वेरिएशंस वो आती हैं और फ्लक्चुएट करती हैं। Now, your book also talks about the gender and the emotions. अब जब हम जेंडर एंड इमोशंस की बात करेंगे तो डिफरेंट हमारे पास एक्सप्रेशंस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल women they can show greater emotional expression, experience emotions more intensely, display emotions more frequently, are more comfortable in expressing emotions and are better at reading others emotions. जिसके बरक्स जब हम मेन की बात करें तो जो रिसर्च एविडेंस हमारे पास आ रहा है इट सेज दैट बिलीव दैट डिस्प्लेइंग इमोशंस इज इनकंसिस्टेंट विद द मेल इमेज, are innately less able to read and to identify with others' emotions, and have less need to seek social approval by showing positive emotions. ओके सो डिफरेंट तरह के अब आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास जो रिसर्च एविडेंस आ रहे हैं वो हमें डिफरेंट तरह के रिजल्ट शो कर रहे हैं रिलेटेड टू द जेंडर वेरिएशन। अब अपने तमाम मूड्स को इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे, इन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक हमें कंट्रोल करना पड़ेगा और उस मकसद के लिए वी हैव टू गो थ्रू इमोशनल लेबर। अब इमोशनल लेबर के बारे में वो कहता है कि दैट इज अ सिचुएशन इन विच एन एम्प्लॉय एक्सप्रेसेस ऑर्गेनाइजेशनली डिजायर्ड इमोशंस ड्यूरिंग इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शंस। इमोशनल लेबर के हवाले से बाकायदा एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से उन्होंने कस्टमर के डिफरेंट कंप्लेंट्स को, डिफरेंट मसाइल को वो टैकल करना है विद अ स्माइल, रिगार्डलेस के व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन देयर हार्ट, माइंड एंड सोल। सो इमोशनल लेबर इज अ वेरी डिफिकल्ट फिनोमेना बिकॉज इसमें हम अपने इंटरनल सिग्नल्स को वो दबाकर एक्सटर्नली ये शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि वी आर ऑलवेज हैविंग द पॉजिटिव जेस्चर्स एंड पॉजिटिव मूड्स एंड इमोशंस। There is another theory in the same relation and it is known as affective events theory, AET. In affective events theory, it is said that emotions are negative or positive responses for emotions are negative or positive responses to a work environment event. ठीक है, सो अब उसके बारे में आपका ऑथर कहता है कि पर्सनैलिटी एंड इमोशन, पर्सनैलिटी एंड मूड्स फॉर दैट मैटर डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ द इमोशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, बाज लोग किसी सिचुएशन को ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, बाज लोग किसी सिचुएशन को कम रिस्पॉन्ड करते हैं। सो पर्सनैलिटी एंड मूड डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ द इमोशनल रिस्पॉन्स। सम पीपल आर पैसिव बाय नेचर, सम पीपल आर एक्टिव बाय नेचर। ठीक है, तो डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे। इमोशंस कैन इन्फ्लुएंस अ ब्रॉड रेंज ऑफ work performance and job satisfaction variables. Okay, that is another important concern कि आपका जो job satisfaction का भी outcome है वो आपके emotions के साथ associated वो होगा। Now the implications of this theory are, number one, individual response reflects emotions and mood cycles. ठीक है,
Number 2, current and past emotions affect job satisfaction. Emotional fluctuations create variations in job satisfaction and performance, and both negative and positive emotions can distract workers and reduce job performance. ठीक है, so different हवालों से आपकी जॉब परफॉर्मेंस के साथ भी रिलेटेड, आपके सेटिस्फेक्शन डेमोन्स्ट्रेशन के साथ भी रिलेटेड, आपके जो पर्सनैलिटी एंड मूड्स हैं वो डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं. अब इस टॉपिक को चूंकि हम टेस्टिंग में गो थ्रू कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि जब भी किसी एम्प्लॉय को आप एक टेस्ट परफॉर्म करने को देते हो, तो उस टेस्ट के दौरान भी टेस्ट की जो परफॉर्मेंस है वो भी, इंटरव्यू की जो परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रही होगी उस शख्स की पर्सनैलिटी, उसके मूड एंड उसके इमोशंस के साथ. एंड बीइंग आयो साइकोलॉजिस्ट, हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम किसी भी टेस्ट को, किसी भी इंटरव्यू को दिन के किस वक्त में कंडक्ट कर रहे हैं, हफ्ते के किस दिन में कंडक्ट कर रहे हैं, और हमारे जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज हैं वो किसी भी पर्सनैलिटी के हवाले से क्यों एक तरह के जनरेट हो रहे हैं. अब अगर हम इस इफेक्टिव इवेंट्स थ्योरी की एक फ्लो शीट डायग्राम में एप्लीकेशन देखें, तो वर्क एनवायरनमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है. इस पे हमारे पास जॉब डिमांड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके टीडीआरस हैं, और आपके रिक्वायरमेंट्स फॉर इमोशनल लेबर है कि आपको उन टीडीआरस को परफॉर्म करने के लिए अपने जज्बात को कितना कंट्रोल करना पड़ेगा. अब उसमें वर्क इवेंट्स क्या आ सकते हैं? वर्क इवेंट्स आपके डेली हैसल्स हैं, आपके डेली अपलिफ्ट्स हैं. ठीक है, कोई चीजें आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर रही हैं, कोई चीजें आपको पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही हैं. सो ये सब आपके वर्क इवेंट्स हैं जो कि आपके रोजमर्रा की रूटीन में आपको जिनका सामना वो करना पड़ता है. इसके साथ अब यहाँ पर जो इंटरवीन कर रही है चीज वो क्या है? वो पर्सनल डिस्पोजिशंस है, और पर्सनल डिस्पोजिशंस में पर्सनैलिटी एंड मूड है. अब हो सकता है कि एक ही सिचुएशन में एक शख्स अगर उसको रिस्पॉन्ड करे और एक शख्स उसको कम रिस्पॉन्ड करे, एक शख्स उससे ज्यादा ट्रिगर हो, एक शख्स उससे कम ट्रिगर हो. तो ये सब चीजें जो पर्सनल डिस्पोजिशंस हैं ये आपके पर्सनैलिटी एंड मूड्स के ऊपर डिपेंड वो कर रही होंगी. अब आपके पर्सनैलिटी एंड मूड्स जब यहाँ पर उन्होंने इंटरवीन किया, तो इमोशनल रिएक्शंस जो हैं दे कैन बी जनरेटेड आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, एंड व्हाटएवर इमोशनल रिएक्शंस आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली वुड बी क्रिएटेड, वो डेवलप करेंगे जॉब डिससैटिस्फैक्शन और जॉब परफॉर्मेंस. इसके ऊपर वो डायरेक्ट इफेक्ट वो कर रहे होंगे. आप इसको रिवर्स में अगर चलाओ तो ये सिचुएशन भी हमारे सामने आ सकती है कि जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब परफॉर्मेंस इट डिपेंड्स अपॉन emotional reactions which are positive and negative, which are intervened by personal dispositions of either personality and moods, और उसको इफेक्ट कर रहा होगा आपके डेली इवेंट्स और वर्क एनवायरनमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. Now another very important thing, और आजकल जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो emotional intelligence is even more important than intelligence quotient. ठीक है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस के जो इफेक्ट्स थे वो जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर हमें ज्यादा वाजिया वो नजर आने शुरू हुए एज कंपेयर टू आईक्यू. इसका ये मतलब नहीं है कि हमें आईक्यू रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सक्यूज मी, ऑब्वियसली हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ आईक्यू डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन में देखें तो आईक्यू से ज्यादा जो जॉब रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट हमें मिलता है वो हमारा ईक्यू का है, इमोशनल क्वोशंट का है. अब अगर आपने इमोशनल क्वोशंट को कैलकुलेट करना हो तो ये 5 डायमेंशंस हैं जो हम इमोशनल क्वोशंट में यूज करते हैं. नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस, व्हिच मींस नो हाउ यू फील. Second is self management, means manage your emotions and impulses. Number 3, self motivation, which means can motivate yourself and persist. Number 4 is empathy, sense or understand what others feel. And number 5 is social skills, can handle the emotions of others. Okay, so these are the 5 dimensions of emotional intelligence. और रिसर्च फाइंडिंग हमें क्या बता रही है कि हाई emotional intelligence scores, not high IQ scores, are characterized for high performers. अब अगर हमने हाई EQ कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए जो पैरामीटर्स हमारे पास आते हैं, दे आर नंबर 1, think clearly and stay focused while under pressure, admit to your own mistakes, meet commitments and keep promises,
hold yourself accountable for meeting your goals, seek new ideas from variety of sources, handle multiple demands and changing priorities. ये सब self explanatory expressions हैं, इसलिए मैं कोई ज्यादा explain नहीं कर रहा हूं, लेकिन we have to be very much careful कि इन तमाम dimensions के ऊपर आपको calculate किया जाएगा for EQ. So handle multiple demands and changing priorities, make sacrifices to meet important organizational goals, cut through red tape and bend outdated rules. इसकी हमें जरूरत होगी. Seek fresh perspectives, take on projects to seek success rather than avoid failures, and set challenging goals and take calculated risks. तो ये तमाम चीजें हमारे EQ की कैलकुलेशन में वो यूज की जाती हैं. Now, there are different organizational behavior applications for understanding emotions. अब हम managerial context में इस चीज को देखते हैं कि एक manager इन तमाम emotions and moods को जानकर क्या करेगा. So सबसे पहले देखिए emotions and selection के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर भी टेस्टिंग से रिलेटेड चल रहा था. तो वो कहते हैं कि emotions affect employee effectiveness. Okay, so किसी शख्स की emotional stability कितनी है, किसी का इमोशनल इंडेक्स हमें क्या शो कर रहा है, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, ये तमाम चीजें इवेंचुअली उसकी जॉब परफॉर्मेंस के साथ एसोसिएटेड वो होनी है. इसी तरह डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो आपका ऑथर कहता है कि इमोशंस आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, कोई भी फैसला जो एक ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में आप कर रहे हो, आप सप्लायर के साथ नेगोशिएशन कर रहे हो, आप बार्गेनिंग बायर के साथ कर रहे हो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपकी डिसीजन मेकिंग हमें करनी पड़ रही है तो उसमें इमोशंस वुड प्ले अ डायरेक्ट रोल. ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि इमोशंस आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशंस. इसी तरह क्रिएटिविटी के हवाले से भी देखिए कि पॉजिटिव मूड इंक्रीजेस द क्रिएटिविटी, और जाहिर है कि अगर आप नेगेटिव कॉनोटेशन में इसको लेकर जाओगे तो नेगेटिविटीज जो हैं वो आपकी ऑब्वियसली इनोवेटिव और क्रिएटिव जो कैपेबिलिटीज हैं उसको हिंडर कर रही होंगी. मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए कि इमोशनल कमिटमेंट टू वर्क एंड हाई मोटिवेशन आर स्ट्रांगली लिंक्ड. Okay, so again, emotions are not just standalone soft things, they are like part and parcel of our everyday aspect of life, from emotions and selection, from decision making, from creativity, from motivation, and reaching up to the level of even leadership. So emotions are important to acceptance of messages from organizational leaders. ठीक है, कि आप किसी भी पैगाम को, किसी भी बात को वो कितना पॉजिटिवली लेते हो या कितना नेगेटिवली लेते हो. तो ये तमाम वो implications हैं जिनको समझे बगैर ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चलाना वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा. और ऑब्वियसली एम्प्लॉइज को हायर करते वक्त, एम्प्लॉइज को ट्रेन एंड डेवलप करते वक्त, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस अप्रेजल के वक्त, ये तमाम वो औकात हैं कि जब आपको इन तमाम चीजों को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर अंडरस्टैंड वो करना होगा. इसी तरह हमारे पास ओबी की एप्लीकेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की एप्लीकेशंस फर्दर एस्पेक्ट्स में भी आ रही हैं. इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस एंड इंडिविजुअल इमोशंस आर स्ट्रांगली इंटरवीन्ड. ओके, सो किसी भी शख्स के साथ आपका जो कॉन्फ्लिक्ट अगर कर रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट को आप कितना पॉजिटिवली ले रहे हो, कितना नेगेटिवली ले रहे हो, आपका मूड जो है वो स्ट्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड है कि आप का मूड जो है वो हैप्पी एंड लॉजिकल है. सो ये सब चीजें इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो भी आपके डायरेक्टली एसोसिएटेड होंगे विद योर मूड्स एंड इमोशंस. लाइकवाइज नेगोशिएशंस, जैसा भी आपको पहले भी बता रहा था कि सप्लायर के साथ नेगोशिएशंस है या बार्गेनिंग्स है, तो इमोशंस कैन इंपेयर नेगोशिएशंस. आपकी कैपेबिलिटी ऑफ नेगोशिएशन वो मांद हो जाती है अगर आप इमोशनली स्ट्रांग अपने आप को फील वो नहीं कर रहे हो. लाइकवाइज कस्टमर सर्विसेज में देखिए कि इमोशंस अफेक्ट सर्विस क्वालिटी डिलीवर्ड टू कस्टमर्स, which in turn affects customer relationships. Okay, so no doubt हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. Emotions and moods are just as important as your KSAOs. So जितने आपके लिए important knowledge के personality aspects को कैलकुलेट करना है, उतना ही आपके लिए emotions and moods और उनकी fluctuations को भी understand वो करना है. Likewise, job attitudes के हवाले से भी वो बात कर रहा है कि can carry over to home. आप वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाओगे. आपको पता है कि वर्क लाइफ बैलेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशंस वी हैव इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. तो आप वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाओगे इफ यू आर नॉट एबल टू टैकल अप विद योर इमोशंस एंड मूड्स.
सो डेविएंट वर्कप्लेस बिहेवियर हमारा एक और बहुत बड़ा इशू है, जिसमें कि नेगेटिव इमोशंस लीड टू एम्प्लॉय डेविएंस, एक्शंस दैट वायलेट नॉर्म्स एंड थ्रेटन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप एक्सप्लॉयटेशन पर उतर आते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो। सो कई हवालों से आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो आपको ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो प्रोडक्टिविटी फेलियर्स अकर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी थेफ्ट एंड डिस्ट्रक्शन हो सकती है, पॉलिटिकल एक्शंस जो है वो मटेरियलाइज हो सकते हैं, पर्सनल एग्रेशन वो क्रिएट हो सकता है, जॉब बर्नआउट, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारे इसके जो इफेक्ट्स हैं वो जनरेट होते हैं। तो लिहाजा बीइंग आयो साइकोलॉजिस्ट हमें इन तमाम चीजों को बड़ा टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा कि किस किस तरीके से हम इन इमोशन से, इन मूड से, एटीट्यूड से, बिहेवियर से वो इफेक्ट हो रहे हैं। So that was our first part of discussion, जिसमें हमने इमोशंस एंड मूड्स के ऊपर एक डिस्कशन की। अब अगले सेशन में इंशाल्लाह हम फर्दर अपने जो चैप्टर के कुछ कंटेंट्स हैं उनको कवर करेंगे। सो ये सेशन बेटा हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है।